नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में 15वें वित्त आयोग के अनुदान में 30 से 40% तक की कटौती के खिलाफ सरपंच और सदस्यों ने विरोध जताया। 15वें वित्त आयोग का अनुदान पूर्ण करने हेतु डीडीओ एवं जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पारडी तिघरा के दीपक कुमार देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे की मुंबई एसीपी संजय पाटिल ने वीडियो संदेश के माध्यम से सराहना की। कॉमेडियन सुनील पाल ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी आने वाली फिल्म में गीतकार के रूप में दीपक कुमार देसाई को लेने की जानकारी दी। धर्मपुर में बारिश के चलते मार्गों में तब्दील होने से नगरपालिका की प्री मानसून की पोल खुली। बारिश के पानी का निकाल नहीं होने से शहर की सड़कों पर जलभराव से वाहन चालक परेशान हैं। वलसाड जिले में 15वें वित्त आयोग के अनुदान में 30 से 40% तक की कटौती के खिलाफ सरपंच और सदस्यों ने विरोध जताया। वलसाड जिले में 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि में 30 से 40% तक की कटौती किए जाने पर पंचायत के सरपंच और तालुका के सदस्यों ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर विरोध किया था। पूरे राज्य में वलसाड जिले के वलसाड, पारडी, वापी और उमरगाम तालुका की लगभग 2 करोड़ रुपए की अनुदान राशि में कमी की गई है। गांव पंचायत और तालुका पंचायत के 2023-24 के दूसरे हफ्ते की अनुदान राशि में कटौती का विरोध किया गया था। डीडीओ द्वारा सरपंच और तालुका पंचायत प्रमुख सहित सदस्यों को विश्वास में लिए बिना अनुदान में कटौती किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया और 15वें वित्त आयोग की पूरी अनुदान राशि देने के लिए डीडीओ और जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया था। अगर आने वाले दिनों में मांगे पूरी नहीं की जाती है तो विकास के कामों में रुकावट डालने की धमकी दी गई। मत डीडीओ गया मत पूछो भी कहीं टाइम भी ले लिया मुख्यमंत्री मुख्य कारण है कि 15મું નાણાકીય જે સરકારશ્રી દ્વારા યોજના ચાલે છે જેમાં વલસાડ જિલ્લાની અંદર વલસાડ તાલુકો, પારડી તાલુકો, વાપી તાલુકો આજ રોજ વલસાડ જિલ્લાની અંદર સમાવેશ વલસાડ તાલુકામાં 15મું નાણાં પંચ જે સરકારશ્રીની યોજના મુજબ માથાદીઠ ગ્રામ પંચાયતોને જે કોઈ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે જે મુજબ કોઈપણ પરિપત્ર તથા ગ્રામ પંચાયતને તથા તાલુકા પંચાયતની અંદર પ્રમુખશ્રીને તથા કોઈપણ પ્રકારની માહિતી તથા પરિપત્ર આપવામાં આવેલ નથી અને અંધારામાં રાખી ગ્રામ પંચાયતના તમામ સરપંચશ્રીઓ દ્વારા અને તાલુકા પંચાયતમાંથી તલાટીઓને માહિતી મળી જે મુજબ જાગૃત સરપંચ લોકોએ માહિતી એકત્ર કરી અને નાણાં પંચની જે કોઈ એમાઉન્ટ હતી એટલે કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર તાલુકા પંચાયત દ્વારા વર્ષના પહેલા તબક્કામાં આયોજન માગવામાં આવે છે અને 2 તબક્કાનું આયોજન પહેલેથી આપવામાં આવે છે। પહેલો હપ્તો જે અનટાઈડ અને ટાઈડનો આપવામાં આવ્યો હતો અને હાલ ઇલેક્શન પછી બીજા હપ્તાની જે કોઈ વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવશે અને પછી તમે તમારા ગામની અંદર કામ કરી શકશો। જે મુજબ સરપંચશ્રીઓ એ ગ્રાન્ટની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। હાલ તે ગ્રાન્ટોની અંદર 40% જેટલી ગ્રાન્ટ ઓછી કરી દેવામાં આવી છે અને એ ખાલી આખા રાજ્યની અંદર વલસાડ જિલ્લામાં આવતા વલસાડ તાલુકો, વાપી તાલુકો, પારડી તાલુકો અને ઉમરગામ તાલુકા આ 4 તાલુકાની ગ્રાન્ટો કોઈપણ સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ
કોઈને જાણ કરવા મૂકવા વગર આ ગ્રાન્ટો કાપી લેવામાં આવી છે. આ ગ્રાન્ટ જે કોઈ ઓછી થઈ છે, જેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ગામની અંદર સરપંચશ્રીઓ આખા વર્ષનું આયોજન ગ્રામ પંચાયતના સભ્યોશ્રીઓ દ્વારા કરતા હોય છે અને એમને જણાવવામાં આવે છે કે બીજા હપ્તામાં તમારું કામ કરશું. હવે આ ઓચિંતી ગ્રાન્ટો ઓછી થઈ જાય છે, જેના કારણે સરપંચશ્રીઓએ ગામની અંદર નીચું જોવાનું થાય છે અને જે ગામની અંદર વિકાસના કામો થતા હોય છે એમાં આ જે ગ્રાન્ટ ઓછી થાય છે, જે મુજબ કોઈપણ પ્રકારના વ્યવસ્થિત કામ થતા હોય નથી. જે મુજબ આજ રોજ 96 ગામના વલસાડ તાલુકાની અંદર સમાવેશ છે. જે 96 ગામના સરપંચશ્રીઓ દ્વારા આવેદનપત્ર માનનીય DDO સાહેબ વલસાડ અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે અને આ ગ્રાન્ટ હાલ તો 23-24ની છે અને 24-25માં પણ 23-24ની ગ્રાન્ટ તો કોઈપણ સંજોગોમાં ઓછી થવી જોઈએ નહીં અને આવતું જે વર્ષ છે 24-25ની ગ્રાન્ટ આ બાબતે વિચાર પણ ના આવે એ બાબતનું અમે આવેદનપત્રમાં ચોખ્ખું લખવામાં આવ્યું છે અને અમારી જે આ માંગ છે એ પૂરી નહીં થશે તો ગામે ગામના સરપંચો ભેગા થઈને કોઈપણ પ્રકારના વિકાસના કામો વલસાડ તાલુકાની અંદર કરવામાં આવશે નહીં. આ મીડિયાના મારફતે હું જણાવું છું. આભાર. આજરોજ વલસાડ તાલુકાના તમામ 96 ગામના સરપંચશ્રીઓ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. આવેદનપત્ર આપવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે 15માં નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ જે 2023 અને 24ની છે એની અંદર ખૂબ મોટો ઘટાડો કરી દેવામાં આવ્યો છે અને 24 અને 25 ને 25 અને 26ની ગ્રાન્ટો જે છે અત્યારે આવતી એના કરતાં પણ 50% ઓછી થઈને આવવાની છે એવી ચર્ચા છે. આ બાબતે સરકાર દ્વારા સરપંચશ્રીઓ કે ગ્રામ પંચાયતને કોઈ પરિપત્ર આપવામાં આવ્યો નથી. તાલુકા વિકાસ અધિકારીને અમે મળ્યા તો એમણે કહ્યું કે મને ચોક્કસ ખબર નથી કે કયા કારણને લીધે ગ્રાન્ટ ઓછી થઈ ગઈ છે. મને તો બોલાવીને કહ્યું કે આટલી ગ્રાન્ટ કપાઈ છે, એ પ્રમાણે હું તમારી જોડે વાત કરું છું. એટલે અમે ઉપર જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને તમામ ગામના સરપંચશ્રીઓ આવેદનપત્ર આપવા એટલા માટે આવ્યા છે કે કયા કારણસર 15માં નાણાં પંચની ગ્રાન્ટ કપાય. 15મું નાણાં પંચ એટલે ગામના વિકાસની દોડી નસ સમાન છે. જો 15મું નાણાં પંચ ના હોય તો ગામનો વિકાસ શક્ય જ નથી. અને આ નાણાં પંચ આ જે નાણાં છે 15મું નાણાં પંચ એ કેન્દ્રમાંથી સીધું આવે છે એટલે ગુજરાત સરકાર વચ્ચે આવતી નથી. પરંતુ અમને એવું જાણવા મળ્યું કે DDO સાહેબે આ નિર્ણય લીધો છે તો અમે સાહેબને ધ્યાન પર લાવવા માંગીએ છીએ કે આ નિર્ણય લેવા પાછળનું કારણ શું હોય. અને ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે ભાઈ તાલુકાના સભ્યો, જિલ્લાના સભ્યો, ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદ સભ્યશ્રી અમુક સરપંચો સાથે મનમેળ ના હોય તો તેને ઓછું ફંડ આપતા હોય. પરંતુ આ નાણાં પંચનું જે ફંડ છે એનાથી સરપંચ ખૂબ સારી રીતે ગામનો વિકાસ કરી શકે છે. એટલે આ ફંડ કોઈપણ સંજોગોમાં પહેલાં જે આવતું એના કરતાં વધવું જોઈએ. કારણ કે 2011ની વસ્તી મુજબ પહેલાં અમને નાણાં પંચમાં રકમ આવતી હતી. હવે તો 2024 ચાલે છે એટલે વસ્તીમાં વધારો થયો છે. તેમાં જો ગ્રાન્ટમાં કાપ મૂકવામાં આવે તો એ કોઈપણ સંજોગોમાં સરપંચોને સ્વીકાર્ય નથી. માટે આ બાબતે DDO સાહેબને અમે માહિતી આપવા માટે આવ્યા છે અને ખુલાસો માંગવા માટે આવ્યા છે કે આ ગ્રાન્ટ ઓછી થવા પાછળનું કારણ શું થાય છે. ગ્રાન્ટમાં રસ્તાનું જે વિકાસ થાય છે તે સીધો અટકી જાય છે. પાણીનો વિકાસ જે કામ છે, પાણીના વિકાસના બ્લોકના કામો છે, ત્યાર પછી ગટરના કામો છે, ગંદકીના નિકાલની બાબતો છે, આ તમામ કામો મતલબ કે જે પાયાના કામો છે, જે લાઇટ છે, સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, એવા તમામ પાયાના કામો પર ખૂબ મોટી અસર થાય છે અને ગામડા ખૂબ જ અંધકારમાં ડૂબી જાય એ પરિસ્થિતિ છે. पारडी तिघरा के दीपक कुमार देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे की मुंबई एसीपी संजय पाटिल ने वीडियो संदेश के माध्यम से सराहना की. मुंबई शहर के सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल और लाफ्टर चैलेंज विजेता प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल ने पारडी तालुका के तिघरा गांव के दीपक कुमार गुलाबभाई देसाई को वीडियो संदेश भेजकर उनकी पुस्तक यादों के गुब्बारे की प्रशंसा की थी. साथ ही सुनील पाल ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में गीतकार के रूप में लेने की जानकारी दी थी. इसके अलावा भाभी जी घर पर है के सेट पर दीपक कुमार देसाई ने मुलाकात की और विभूति नारायण मिश्रा फेम आसिफ शेख को अपनी पुस्तक यादों के गुब्बारे भेंट की थी. इस अवसर पर भाभी जी घर पर है के कलाकार टीका उर्फ सलीम जैदी भी उपस्थित थे और उन्होंने भी वीडियो संदेश दिया था. मुंबई शहर के एसीपी
संजय पाटिल एक हीरो जैसे व्यक्तित्व वाले और मधुर स्वर के मालिक बहुमुखी प्रतिभा वाले अधिकारी हैं। दीपक कुमार देसाई ने उनके घर पर उनसे मुलाकात की और उन्हें अपनी पुस्तक यादों के गुब्बारे भेंट की थी। इस पुस्तक को पढ़कर संजय पाटिल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वीडियो संदेश भेजकर पुस्तक की प्रशंसा की थी। इसके साथ ही सुनील पाल की भी दीपक कुमार देसाई से मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी वीडियो संदेश भेजकर दीपक कुमार देसाई को गीतकार के रूप में प्रशंसा की थी। इन वीडियो संदेशों को प्राप्त करने के बाद दीपक कुमार देसाई ने एसीपी संजय पाटिल, प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल, आसिफ शेख, टीका उर्फ सलीम जैदी का आभार व्यक्त किया और उन्हें शुभकामनाएं भेजी थी। साहित्य लेखक और 12 पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपक कुमार देसाई ने अपनी कविता के माध्यम से संजय पाटिल की प्रशंसा की थी, जो यहाँ प्रस्तुत है। इन पंक्तियों को आवाज देने के लिए टीका उर्फ सलीम जैदी का दीपक कुमार देसाई ने आभार व्यक्त किया था। नमस्कार साहित्य प्रेमियों, गुजरात के एक प्रतिभाशाली गीतकार जिनका नाम है दीपक कुमार देसाई, जिन्हें कई मंत्रियों तथा महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने उनके कार्य की प्रशंसा करके उन्हें सम्मानित किया है। दीपक जी ने एक कॉमेडी हिंदी फिल्म गाली गलौज के भी गीत लिखे हैं। दीपक जी का हाल ही में हिंदी और गुजराती भाषा में एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है यादों के गुब्बारे। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भी दीपक कुमार देसाई जी की इस बेहतरीन कविताओं का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जाने माने गीतकार दीपक देसाई दीपक यहाँ पर मौजूद है, जो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखती, जिनकी किताब यादों के गुब्बारे मेरे हाथ में है और साथ साथ में ये बहुत ही प्यारे इंसान है, प्रेम रस बांटते हैं। सर मज़ा आ गया, इतना ज़बरदस्त आम आप लोगों को दे रहे हैं, प्यार एक रस बांट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है कि आपकी ऐसी किताबें छपती होगी। और हमारी फिल्म कॉफ़ी विथ अलोन में इनका गाना बहुत बढ़िया है, जो अल्तमश ने गाया है, अल्तमश परिधि में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सेशन बहुत लंबा चलेगा और आप हैंडसम थे, हैंडसम है, हैंडसम भी रहेंगे। दीपक, आप अंधेरी में आते रहिए, अंधेरे में दीपक की जरूरत है। दंगों के दौरान पुलिस को भीड़ पर लाठियां बरसाते हुए देखा है। गुनाहगारों के खिलाफ पुलिस को अक्सर सख्ताई करते हुए देखा है। कौन कहता है कि लोगों को सिर्फ खौफ से ही वश में किया जाता है। हमने तो संजय पाटिल की मधुर आवाज पर लोगों को तालियां बजाते हुए देखा है। जोरदार तालियां हो जाए संजय पाटिल सर के लिए। श्री प्रख्यात कॉमेडियन श्री सुनील पाल के यहाँ भी मुलाकात की उनकी, और उन्होंने भी मेरे लिए एक वीडियो संदेश जारी किया हुआ है। फिर उनके आने वाली फिल्म में मेरे गीत लिखा हुआ है, इसके लिए उन्होंने अपने वीडियो संदेश में माहिती दी है और उनको भी मैं ये वीडियो संदेश के लिए उनके शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हाल ही में मुंबई शहर के एसीपी सर श्री संजय पाटिल के घर पर मैंने उनकी मुलाकात ली और अपनी मेरी पुस्तक यादों के गुब्बारे उनको भेंट स्वरूप दी। वो पुस्तक उन्होंने सादर स्वीकार की और उन्हें वो पुस्तक पढ़ के उन्होंने प्रशंसा के स्वरूप एक वीडियो संदेश जारी किया हुआ है और ये वीडियो संदेश में उन्होंने मेरी यादों के गुब्बारे पुस्तक की प्रशंसा की। उसके लिए मैं श्री संजय पाटिल सर का आभारी हूँ और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। श्री संजय पाटिल एक मधुर स्वर और हीरो जैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं और बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं और मैं उनको ये वीडियो संदेश के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। के घर पे हैं, सेठ की मुलाकात की, वहाँ विभूति नारायण मिश्रा फेम श्री आसिफ शेख की मुलाकात की और उनको मेरी पुस्तक यादों के गुब्बारे भेंट स्वरूप दी और वहाँ भाभी जी के घर पे है के कलाकार श्री सलीम जैदी उर्फ टिल्लू भी उपस्थित थे और उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी करके मेरी प्रशंसा की है। और जो ऑडियो संदेश मेरी कविता के लिए ऑडियो संदेश में श्री सलीम जैदी ने अपनी आवाज़ दी है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मपुर में बारिश के चलते मार्गों में तब्दील होने से नगरपालिका की प्री मानसून की पोल खुली।
धर्मपुर में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई थी। धर्मपुर शहर के साथ साथ तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने से हर जगह पानी ही पानी हो गया था। इससे धर्मपुर पालिका की प्री मानसून की तैयारियों के दावे खोखले साबित हुए। धर्मपुर में 4 घंटे में 3 इंच जितनी बारिश हुई और पहली बारिश ने ही पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल खोल दी। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया और सड़कें नदी में बदल गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बारिश के पानी का निकाल न होने से लोगों ने पालिका की लापरवाही के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पारडी हॉस्पिटल में इंदिरा आईवीएफ और कुरैशी आईवीएफ का सहयोग होने पर वित्त मंत्री ने उद्घाटन किया। पारडी हॉस्पिटल में पिछले 5 वर्षों से बांझपन के निवारण के लिए कुरैशी आईवीएफ चल रहा है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं और जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे अब वो बच्चों को खिला रहे हैं। कुरैशी आईवीएफ का आज भारत की नंबर 1 इंदिरा आईवीएफ संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस संस्था के 130 केंद्र है और 250 से ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्था बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करती है। दक्षिण गुजरात में इंदिरा आईवीएफ संस्था के साथ कुरैशी आईवीएफ का जुड़ाव पहली बार हुआ है और जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं ऐसे मरीजों को यह संस्था गुणवत्तापूर्ण उपचार देकर सेवा प्रदान करेगी और माता पिता को बच्चा मिल सकेगा, जिसके लिए आधुनिक उपचार द्वारा इलाज किया जाएगा। रविवार को सुबह 10 बजे पारडी हॉस्पिटल में इंदिरा आईवीएफ और कुरैशी आईवीएफ दोनों संस्थाओं का संयुक्त उद्घाटन हुआ था। पारडी के विधायक और राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और बांझपन निवारण केंद्र का उद्घाटन किया था। उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं ऐसे दंपतियों को बांझपन निवारण के लिए अब सूरत या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, पारडी में ही आधुनिक सुविधा मिलेगी। उन्होंने पारडी हॉस्पिटल के मालिक और संचालक डॉक्टर एम कुरैशी और डॉक्टर कुरैशा एम कुरैशी दोनों डॉक्टरों को बधाई दी और उनकी सेवा की सराहना की। इस अवसर पर वल्लभ आश्रम संस्थान के संचालक स्वामी हरि प्रसाद दास जी ने आशीर्वाद दिया और कहा था कि एक समय जब महिलाओं को बांझ कहकर अपमानित किया जाता था, लेकिन अब आईवीएफ जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने से महिलाओं को ऐसे अपमान से मुक्ति मिली है। उन्होंने आधुनिक सुविधा को उत्तम सुविधा बताया और जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं ऐसे दंपतियों से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इंदिरा आईवीएफ संस्थान की डॉक्टर धाराबेन जोशी उपस्थित थी और संस्था के बारे में उन्होंने जानकारी दी, आधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और इंदिरा आईवीएफ और कुरैशी आईवीएफ के सहयोग से वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के भाई बहनों को बहुत उपयोगी होगा ऐसा विश्वास व्यक्त किया था। बाद में डॉक्टर एम कुरैशी और डॉक्टर कुरैशा एम कुरैशी, स्वामी हरि प्रसाद दास जी, डॉक्टर धारा जोशी, वलसाड़ के प्रसिद्ध सेवा भावी और फ्री आई हॉस्पिटल के भरत भाई देसाई सहित कई महानुभावों ने बांझपन निवारण से संबंधित पुस्तिका का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम में वल्लभ आश्रम के ट्रस्टी दिनेश भाई साकरिया, मानव आरोग्य सेवा केंद्र के दिनेश भाई शाह सहित पारडी क्षेत्र के कई डॉक्टर भाई बहन, पारडी हॉस्पिटल के कर्मचारी और पारडी के नागरिक उपस्थित थे। उन्होंने शुभकामनाएं दी और आगामी 15 जून से 25 जून तक राहत दर पर कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप के दौरान बांझपन निवारण के लिए आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा और उपचार से संबंधित बिल में छूट दी जाएगी, जिसका लाभ उठाने की अपील डॉक्टर कुरैशा एम कुरैशी ने की है।
Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Yes, sir. हमारे डिपार्टमेंट Thank you. Thank you so much. આજે આ જે કોલાબરેશન ઇન્દિરા આઈવીએફ અને કુરેશી આઈવીએફ નું થયું એનું ઉદ્ઘાટન આપણા ગુજરાતના નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈને હસ્તે થયું અને એ જ સમયે દર્દીઓને એજ્યુકેટ કરતી અને માહિતી પ્રદાન કરતી પુસ્તિકાનું વિમોચન અને સાથે સાથે આશીર્વચન વલ્લભ આશ્રમના સ્વામી શ્રી હરિપ્રસાદ દાસજીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઇન્દિરા આઈવીએફના ક્લિનિકલ હેડ ડોક્ટર જોશી ધારાબેન જોશી ખાસ હાજર રહ્યા હતા અને ખૂબ આનંદની વાત છે કે હવે જે ઇન્ટરનેશનલ ક્વોલિટીની જે અને હાઈ એન્ડ ટેકનોલોજી સાથે હાઈ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ ધરાવતી આ જે ઇન્દિરા આઈવીએફની ચેઇન છે એને કારણે મેટ્રો સિટીઝની અંદર જે પણ બેસ્ટમાં બેસ્ટ ક્વોલિટી આઈવીએફ માં ઉપલબ્ધ છે તે અહીંયા પારડી ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે અને સાથે સાથે સિનિયર ટેકનોલોજી જેઓ ખૂબ જ પોતાની કામમાં નિપુણતા ધરાવે છે એવા કુરેશાબેન અને બહુ જ પ્રમાણિકપણે અને ટ્રાન્સપરન્સીથી કામ કરે છે એમના નેજા હેઠળ આ સેન્ટર અહીં ચાલશે અને ચાલી રહ્યું છે છેલ્લા 4 વર્ષથી અને એને કારણે એનો ફાયદો સમગ્ર સમાજના જે મધ્યત્વ કે નિસંતાન યુગલો છે એમને સાંપડશે. તો ઇન્દિરા આઈવીએફ અત્યારે આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટમાં સૌથી મોટું નામ છે ઇન્ડિયાની અંદર અને ઇન્દિરા આઈવીએફનું સતત વિઝન એ જ રહ્યું છે કે નાનામાં નાના એરિયા સુધી આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટને પહોંચાડવી અને એના વિશે અવેરનેસ લાવવી અને જે પણ ડોક્ટર્સ ઓર આઈવીએફ એક્સપર્ટ્સ એવા અમને જે અમારી જર્નીમાં મળતા જાય છે કે જે અમારા જેટલું જ પેશન ધરાવે છે તો અમે એમને અમારી જર્નીમાં સાથે જોડતા જઈએ છીએ. તો ડૉક્ટર કુરેશા પણ એમાંના જ એક છે. તો એમનું એન્થુઝિયાઝમ અને એમનું વિઝન જોઈને ઇન્દિરા આઈવીએફ એમની સાથે આ જર્નીને વધારે આગળ કરીને વધારે રીચ પહોંચી શકે વલસાડ અને એની નિયરબાય બધા જ રિજનમાં બી અમે આ જે અમારી જર્ની છે એને આગળ વધારી શકીએ અને વધારે લોકોને એમ્પાવર કરી શકીએ કપલને એના ડ્રીમ્સ અચીવ કરવા માટે. એના માટે થઈને આજે અમે એક જોડાણ કરેલું છે. આનું ઇન્દિરા આઈવીએફ સાથે જોડાણ થયું છે. વધુમાં વધુ નોલેજ, અનુભવ અને સેવાઓનો લાભ આ વિસ્તારના લોકોને ચોક્કસ મળશે એવી મને ખાતરી છે અને આપણે સુરત કે મુંબઈ જવું પડે એના બદલે આ જ વિસ્તારમાં આ ટ્રીટમેન્ટ થશે એટલે બહેનોને ખાસ આનો લાભ લેશે અને ખાસ કરીને જ્યારે આજે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ બીજી વાર દેશના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ વિધિ લઈ રહ્યા છે ત્યારે આ ઉદઘાટનનો દિવસ ચોક્કસ રીતે યાદ રહેશે કે આ દિવસે ફરીથી સૌને શુભેચ્છા આપું છું અને જવાની રજા. આજે આપણે કુરેશી આઈવીએફમાં ઇન્દિરા આઈવીએફ અને કુરેશી આઈવીએફનું કોલાબોરેશન સેલિબ્રેશન હતું. અમે લગભગ 4 વર્ષથી કુરેશી આઈવીએફ તો ચાલુ જ છે પણ અમે ઇન્ડિયાની બેસ્ટ આઈવીએફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન્દિરા આઈવીએફ સાથે કોલાબોરેશન કર્યું છે જેના કારણે ઇન્ડિયાની શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજી શ્રેષ્ઠ એના સાધનો આપણે આ વિસ્તારમાં પણ મળી રહે તેના માટે આપણે કાર્યરત છે. આ સંસ્થા ઇન્દિરા આઈવીએફની ઓલમોસ્ટ 120 શાખા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં છે. એ પછી દિલ્હી હોય, બોમ્બે હોય કે ગમે ત્યાં હોય, ત્યાં જે ક્વોલિટી છે એ જ ક્વોલિટી તમે અહીંયા એક્સપેક્ટ કરો અને એ જ ક્વોલિટીથી અહીંયા કામ કરશે અને એમાં એટલા બધા ઊંચા સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે કે એ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે જ કામ થાય અને એના કારણે પેશન્ટનો વિશ્વાસ વધે, સક્સેસ રેટ વધે અને ક્વોલિટી કામ થાય. ઇનફર્ટિલિટી માટે દૂર જવાની જરૂર નથી. સાઉથ ગુજરાતમાં સુરતથી લઈને બોમ્બે સુધી, બોરીવલી સુધી આપણું સેન્ટર ઇઝ કોલિંગ વિથ ઇન્દિરા આઈવીએફ. હાજર છે ઇન્દિરા આઈવીએફના હેડ ડॉक्टर दारा जोशी. એ પણ તમને 2 શબ્દ કહે. वलसाड के बशिया गांव में स्थित रिवर व्यू नामक एक इमारत में सुरक्षा लॉक न खुलने के कारण
चोरों को वापस जाना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वलसाड के वशियर गांव में स्थित तपोवन सोसाइटी में रिवर व्यू नामक एक इमारत है। इस इमारत में 4 हथियारबंद चोरों ने पीछे की दीवार फांदकर प्रवेश किया था, लेकिन इमारत में लगे सुरक्षा लॉक के कारण दरवाजा न खुलने से चोरों को खाली हाथ जाना पड़ा और चोरी का प्रयास विफल हो गया। पूरी घटना इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इमारत के निवासियों ने घटना की जानकारी वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन को दी थी। पारड़ी सुलभ नगर में स्थित ओमकार रेजिडेंसी में रुपए 1 लाख की चोरी के मामले में 2 चोर पकड़े गए। पारड़ी सुलभ नगर में स्थित ओमकार रेजिडेंसी के ए विंग में फ्लैट नंबर 304 में रहने वाले अमित भाई सोमचंद पंचाल की पत्नी सोनल बेन और उनके साले गांव गए हुए थे, इसलिए फ्लैट को ताला लगाकर 24 मई को वे नौकरी पर खड़की ज्योति प्लास्टिक कंपनी गए थे। इस दौरान चोरों ने उनके फ्लैट को निशाना बनाया और फ्लैट के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में रखे नकद रुपए 15,000 और सोने का मंगलसूत्र, चांदी के अन्य गहने मिलाकर लगभग 1.2 लाख की चोरी कर फरार हो गए थे। इस घटना के बारे में पारड़ी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच गांधीनगर एलसीबी के हाथों पारड़ी में हुई चोरी के गहनों के साथ 2 व्यक्तियों को कार में पकड़ा गया था। इसकी जानकारी गांधीनगर पुलिस ने पारड़ी पुलिस को दी, जिसके बाद पारड़ी पुलिस गांधीनगर कालोल पुलिस स्टेशन पहुंची और पकड़े गए गोविंदा ओम प्रकाश कड़ाई दास कोहली और समीर उर्फ दाऊद, नजाकत उर्फ लियाकत तुर्क दोनों को कब्जे में लेकर पारड़ी ले आई और पुलिस ने इस मामले की आगे की जांच शुरू की। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड जिले में 15वें वित्त आयोग के अनुदान में 30 से 40% तक की कटौती के खिलाफ सरपंच और सदस्यों ने विरोध जताया। 15वें वित्त आयोग का अनुदान पूर्ण करने हेतु डीडीओ एवं जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पारड़ी तिघरा के दीपक कुमार देसाई की पुस्तक यादों के गुब्बारे की मुंबई एसीपी संजय पाटिल ने वीडियो संदेश के माध्यम से सराहना की। कॉमेडियन सुनील पाल ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी आने वाली फिल्म में गीतकार के रूप में दीपक कुमार देसाई को लेने की जानकारी दी। धर्मपुर में बारिश के चलते मार्गों में तब्दील होने से नगरपालिका की प्री मानसून की पोल खुली। बारिश के पानी का निकाल नहीं होने से शहर की सड़कों पर जलभराव से वाहन चालक परेशान हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।